بالکل اسد عمر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں، لیکن ابھی کا فیصلہ درست ہے کیونکہ یہ کیا جانا چاہیے تھا۔ ابھی مزید تفصیلات کیا ہیں اس فیصلے کی جانیں گے۔ ریحان شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریحان شیخ، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، ڈیٹیلز کیا ہیں اس کی؟ جی ریحان۔ جی بالکل، دیکھیے اب سے قبل جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو محفوظ شدہ فیصلہ سنایا ہے، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت 3 رکنی کمیشن نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ سنایا ہے، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے جو ریفرنس بھیجا گیا تھا اس کو منظور کر لیا گیا، اور پنجاب اسمبلی کے پی ٹی آئی کے جو 25 منحرف اراکین ہیں ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا۔ بڑا فیصلہ یہ آج الیکشن کمیشن کی جانب سے سنایا گیا ہے، محفوظ شدہ فیصلہ تھا۔ یہ اسپیکر نے جو آج سے 1 ماہ قبل جو ہے الیکشن کمیشن کو بھیجا تھا، اس کے بعد 23 تاریخ کو یہ بھیجا تھا، 6 اپریل کو پہلی سماعت ہوئی تھی، کل 8 سماعتیں ہوئی تھی، آخری سماعت منگل یعنی 17 تاریخ کو ہوئی تھی اور فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ اسی روز ایک کاغذ جاری کی تھی کہ اگلے دن سنایا جائے گا، لیکن وہ کاغذ وڈرا کر لی گئی۔ اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ آج سنایا گیا ہے، اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، جس کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی کے جانب سے جو ریفرنس بھیجا گیا تھا اس کو منظور کرتے ہوئے 25 منحرف اراکین کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے ریحان شیخ، یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے، اچھا مزید بھی سوالات کریں گے۔ شوکت پراچا ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ شوکت صاحب، پہلے تو بتائیے گا اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ فیصلہ مور اور لیس آن دا کارڈ تھا، اور یہی لگ رہا تھا جیسے آرگومنٹ بھی ہو رہے تھے، اور یہ فیصلہ ان اکارڈنس ود آرٹیکل 63 آیا ہے۔ آرٹیکل 63 میں بالکل یہی بات تھی کہ جو ڈیفیکشن کرتے ہیں، پارٹی کے فیصلے کے خلاف جاتے ہیں، وہ ڈی سیٹ ہوں گے۔ جو لارجر کوشچن جو بھیجا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کہ یہ 1 ٹائم ڈی سیٹنگ ہے، نااہلی ہے، ایک وقت کی 5 سال کی یا تا حیات، ظاہر ہے اب الیکشن کمیشن اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتا، اور جو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ پارلیمنٹ اس پہ قانون سازی کرے گی، لیکن ایٹ دا مومنٹ ایک تو اس کی یہ ریپرکشن آ گئی کہ یہ فیصلہ آ گیا اور ڈی سیٹ ہو گئے۔ دوسرا اس سے بڑا سوال جو اب پیدا ہو گیا، حمزہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بننے کے لیے ان 25 لوگوں نے ووٹ دیا تھا، اور 25 لوگوں کی اکثریت کے ساتھ ان کے 197 ووٹ بنے تھے، تو اب وہ مائنس ہو گئے، تو 186 کی جو ایک سمپل میجورٹی ہے وہ تو ہو گئی ختم۔ اب کیا دوبارہ وہاں ووٹنگ ہوگی؟ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کون کہے گا؟ گورنر تو ہے نہیں، اسپیکر قومی جو صوبائی اسمبلی ہیں انہوں نے گورنر لینے کا کینڈیڈیٹ بھی ہیں، پلس انہوں نے گورنر کا چارج لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ آج اگر وہ گورنر کا چارج لے چکے ہوتے جیسے انہیں کہا گیا تھا، تو وہ گورنر کی حیثیت سے ووٹ آف کانفیڈنس کا بھی کہہ سکتے تھے، کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے۔ لہذا پنجاب میں جو ایک کرائسس تھا، جو کمپلیکیشن تھی، وہ زیادہ ہو گئی ہیں۔ اگر تو 91 آرٹیکل 91 کے کلاز 4 کے تحت چلا جائے تو پھر حمزہ شہباز کو ابھی بھی اکثریت حاصل ہے، وہ کہ سمپل میجورٹی نہیں ہے، لیکن وہ سیکنڈ کلاز کی پرویزوں کے تحت ان کے پاس 2-3 ووٹس زیادہ ہیں۔ لہذا اب کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، یہ تو سیاسی جماعتیں جب اس کو ریئیکٹ کریں گی تو پتہ چلے گا۔ فی الحال جو ہے یہ 25 لوگ جو حقیقت ہے وہ تو کم از کم اپنے گھروں کو جائیں۔ بالکل سلیم شیخ، آپ کی طرف آئیں گے۔ جس طرح سے شوکت پراچا نے کہا کہ سیاسی جماعتیں جب اس پہ اعتراضات اٹھائیں گی تو چیزیں زیادہ واضح ہو جائیں گی، قانونی اور آئینی حیثیت انہوں نے بیان کر دی۔ ابھی اسد عمر نے گفتگو کی الیکشن کمیشن کے باہر، انہوں نے کہا کہ موجودہ پنجاب حکومت کا ایک دن رہنے کا جواز نہیں رہتا۔ یہ جو سیاسی بحران اب شدت اختیار کر گیا ہے پنجاب میں، کس سمت بیٹھے گا یہ اونٹ؟ دیکھیے، جو الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے اس کے مطابق تو جو ہے اب حمزہ شہباز کے بعد بطور وزیر اعلیٰ ان کے پاس ممبرس کی تعداد پوری نہیں ہے، جس طرح ابھی شوکت راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اب انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے گا، پھر وہ ڈی سیٹ ہوں گے، اور اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جو ہے گورنر پنجاب جو ہے وہ ہدایت جاری کرتے ہیں۔ اس وقت جو آئینی طور پر دیکھا جائے تو گورنر پنجاب کی جو سیٹ ہے وہ خالی ہے۔ اب جو ہماری رائے ہے اس مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی کی طرف سے ان کا وہ بھی اپنی ایک
कानूनी टीम के साथ बैठ गए हैं, बल्कि पहले से बैठे हुए थे इस फैसले के बाद, फैसले से पहले कि अगर ये फैसला आता है तो इसको वो किस तरह आगे लेकर जाएंगे। तो कानूनी टीम के साथ मुशावरत उनकी जारी है और उसमें ये देखना है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहना है तो फिर हो सकता है कि चौधरी परवेज लाई जो कि इस वक्त स्पीकर हैं और वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार भी थे माजी में, तो अगर वो उनका नोटिफिकेशन किया गया है वो वाकई हुकूमत की तरफ से कि वो गवर्नर पंजाब बन सकते हैं और एडिशन चार्ज ले सकते हैं। तो अब देखना ये है कि चौधरी परवेज लाई अगर वजीर आला पंजाब को एतमाद के वोट के लिए कहते हैं तो फिर उन्हें गवर्नर बनना पड़ेगा, और फिर जब वो गवर्नर बनेंगे तो हमजा शहबाज को कहा जाएगा कि आप एतमाद का वोट लें। और यकीनी बात है कि 186 अरकान जो है वो अपने साथ नहीं रख सकेंगे और इस तरह जो है वो अदम एतमाद उनके खिलाफ आ जाएगी और फिर सूबे में कोई नहीं होगा वजीर आला। और उसके लिए फिर दोबारा से जो है अगर इन्हीं सीटों पर हम इंतखाब होगा पंजाब असम्बली में तो फिर पहली सूरत तो यही है कि 286 अरकान जो है 186 अरकान जो है वो वोट डालेंगे तो फिर वजीर आला पंजाब मुंतखब होगा। लेकिन अगर 186 अरकान किसी के पास नहीं होंगे तो फिर आइन और कानून के मुताबिक उसी दिन दोबारा जो है वो वजीर आला पंजाब का बिल्कुल सलीम शेख, जो सूरत हाल बन रही है हम देख रहे हैं आईनी बहरान जो है वो मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम फैसले पर अगर राय ले लें, आसमा शिराजी भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आसमा, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो फैसला सामने आया है इलेक्शन कमीशन का, इस पर क्या कहेंगी? जी, जाहिर है बहुत अहम फैसला है और बिल्कुल जो कवानीन है उसको मद्देनजर रख के मुतफिका फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है और 25 अफराद जो हैं अरकान असम्बली पंजाब असम्बली के और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था वो अब डिसीट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू द डिसीजन। अब जाहिर है कि ये ऑप्शन मौजूद है कि अभी इसके बाद जो है दोबारा वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से अगर वो अपनी कोई उनकी सुनवाई होती है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक हुकूमत किसकी है, वजीर आला कौन है, ये एक आईनी बहरान जो है वो पंजाब में जन्म ले चुका है और यही वो सूरत हाल है जिसकी बुनियाद के ऊपर अब ये आईनी बहरान कितना कंटिन्यू करेगा और कितना सफर करेगा, क्योंकि इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है वो पूरी तरह से स्टैंड स्टिल है। और अगर आप उस डिसीट होने के मामले के बाद फैसले को देखें जो उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया था और उसकी रोशनी में इंटरेस्ट थे कि उन्होंने जो तशरीह की थी वो राय थी, इस राय के तहत अगर आप देखिए इलेक्शन कमीशन बॉडी है उसका ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ा फैसला है और ज्यादा अहम फैसला है। लिहाजा अब सूरत वहाँ पे क्या बनती है, जो मौजूदा नंबर है पंजाब असम्बली का उस नंबर के ऊपर या के अंदर जो है दोबारा से समाज का वोट लेना पड़ेगा या री इलेक्शन होगा। ये देखना बहुत जरूरी होगा कि पंजाब के अंदर अगर री इलेक्शन होता है और खास करके वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल ये है कि गवर्नर की अदम मौजूदगी है और नए गवर्नर के लिए अभी तक जो असम्बली गई है उससे सदर मुमलिकत जो है उनका कोई उससे उनका फैसला नहीं आया। लिहाजा ये देखना बहुत अहम होगा कि अगर गवर्नर भी नहीं होता और असम्बली के एतमाद से वोट लेने के लिए कौन कहेगा, कब कहेगा, कैसे कहेगा। इस वक्त बिल्कुल एक आईनी बहरान है जिसका कि पंजाब शिकार है। गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 महीने से वहाँ पर इसी तरह की सिचुएशन जो है वो हो रही है। तो कौन हल करेगा, किस तरह हल करेगा, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है वो अहकाम दे सकता है या पंजाब हाई कोर्ट जिसके अंदर ये मामला था। और ये याद रहे कि कल एडवोकेट जनरल पंजाब जो थे अहमद अवैस साहब उनको भी काम करने से रोका था पंजाब गवर्नमेंट ने, उनको भी परमिशन दे दी गई कि वो अपना काम जो है वो जारी रखें। तो एक अजीब सी सूरत हाल है जिसका पाकिस्तान में इससे पहले कभी सामना नहीं हुआ। ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस से ज्यादा ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और इसकी प्राइस जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को जो है वो अदा करनी पड़ेगी। यही वो चीजें वफाक के अंदर भी सूरत हाल बहुत गैर वाज़े है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। जब तक ये सूरत हाल वाज़ेह नहीं होगी जाहिर है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान बढ़ता चला जाएगा। सही, बिल्कुल। रेहान शेख हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर, जहां पर अब से कुछ देर पहले पीटीआई के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू भी की है। रेहान शेख बताएगा कि यहाँ से जो रिएक्शन आ रहा है पीटीआई का वो तो साफ है, जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि पंजाब की हुकूमत के लिए संगीन मसाइल पैदा हो गए हैं, आईनी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। इस वक्त क्या चहमागोइयां हो रही हैं सियासी हलकों में, क्या कहा जा रहा है इस फैसले के बाद? अच्छा रेहान, इसमें ये भी ऐड कर लीजिएगा जरा फैसले की डिटेल्स में, नाअहली, ताहयात नाअहली, इन दोनों के हवाले से क्या कहा गया है और अभी फिलहाल सिर्फ डी सीट करने की बात की गई है या 5 साल नाअहली की भी बात की गई है, जरा इस डिटेल्स को भी बताइएगा जरा।
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो पंजाब का जो बहरान है सियासी और दीगर आइनी जो नुकात हैं उस पर जो दीगर शौकत पराचा साहब हैं, आसमा शराजी साहबा और सलीम शेख और दीगर लोग हैं वो उस पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन तक महदूद रहूं, सिर्फ आधा मिनट लूंगा थोड़ा सा बैकग्राउंड जो जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है। 17 अप्रैल को पंजाब असम्बली के स्पीकर एक रेफरेंस भेजते हैं इलेक्शन कमीशन को कि पीटीआई के 25 मुनरिफ अराकीन ने जो है पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करके वोट डाला और एक रेफरेंस भेजा गया जिस पर इलेक्शन कमीशन 6 मई को पहली समाअत करती है। कुल 8 समातें होती हैं। 17 मई यानी मंगल के रोज फैसला महफूज कर लिया जाता है फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद। उसके बाद आज जो फैसला सुनाया गया 3 रुकनी कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने जो एक शॉर्ट सा जो एक फैसला सुनाया जिस पर आपका ये सवाल था कि ये 5 साल के लिए नाअहल है या ताहयात है, इस पर जो उन्होंने मुख्तसर सा आके जो फैसला पढ़कर सुनाया और ये बताया कि स्पीकर की जानिब से जो रेफरेंस भेजा गया था इसके अंदर रेफरेंस में उन्होंने जो कुछ कहा था कि पार्टी से हटकर पार्टी की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की वोट डालिया गया, वो तमाम चीजें इसके अंदर साबित हो जाती हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन जो है इन 25 अराकीन को जो है वो डी सीट करने का फैसला जारी करता है। अभी इलेक्शन कमीशन ने डी सीट की बात की है, क्या ये 5 साल के लिए है, सारी उम्र के लिए ताहयात होंगे या इलेक्शन कमीशन ये रेफरेंस दोबारा स्पीकर पंजाब असम्बली को भिजवाते हैं, मजीद कानूनी जो चीज वहां से होगी। इस वक्त जो एक शॉर्ट ऑर्डर पढ़कर सुनाया गया उसमें ये वाज़िह तौर पर कहा गया कि पंजाब असम्बली के ये 25 अराकीन जो है इनको डी सीट किया जाता है। और बड़ा एक फैसला था और तहरीक इंसाफ इस तवक्को भी कर रही थी। इससे कबल कौमी असम्बली के अराकीन की जानिब का जब फैसला आया तो उस पर एक चीज ये थी कि उन्होंने वोट ही नहीं डाला था, इसलिए इलेक्शन कमीशन से पीटीआई को रिलीफ ना मिल सका। लेकिन पंजाब असम्बली के मामले पर पीटीआई को एक काफी उम्मीद थी जो कि आज साबित भी हुई, उनको यहाँ से एक रिलीफ मिल गया है। अब इलेक्शन कमीशन इसका तहरीरी फैसला जारी करेगी, उसके बाद मजीद सूरत हाल वाज़िह होगी कि इनको कितने अरसे के लिए नाअहल करार दिया है। ताहम मुख्तसर जो फैसला शॉर्ट ऑर्डर जो पढ़कर सुनाया है इसमें पंजाब असम्बली के 25 अराकीन को जो है यूनानिमसली मुत्तफिका तौर पर जो है टी सीट करने का फैसला दे दिया गया है। फौरन बाद यहाँ पर पीटीआई के जो रहनुमा थे असद उमर, फरूख हबीब और दीगर उनके वकला थे फैसल चौधरी, उन्होंने भी इस फैसले को खुशाइन करार दिया और साथ में ये कहा कि अब एक दिन भी पंजाब असम्बली में जो है हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला रहने का कोई जवाज नहीं बचता। और उनका ये भी कहना था कि हम जो कानूनी और लीगल जो चीजें हैं वो जल्द अब शुरू करेंगे और एज सुन एज पॉसिबल कोशिश ये करेंगे कि जो सीएम पंजाब है उनको किस तरह अपनी सीट से उतारा जाए, उस कानूनी नुकात को लेकर आईनी माहिरीन से मशवरा भी करेंगे। ठीक है शौकत पराचा, आपकी तरफ आएंगे। ये तो पंजाब के मामलात हो गए जहां पर आईनी बहरान और दीगर मामलात सामने आ चुके हैं। पीटीआई वाले अब कहते हैं कि अब हम वफाक की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन वफाक में हमने देखा कि उन्होंने मुनहरिफ अरकान के वोट काउंट नहीं किए। तो आप समझते हैं कि सिचुएशन अलग है दोनों तरफ? इंटायरली अलग है। पहली बात तो ये है कि जो वफाक में तो बाकायदा तौर पर इसी इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था, चूंकि जो बज़ाहिर नजर आए कि ये अरकान मुनहरिफ हो चुके हैं, उन्होंने वोट नहीं डाले थे, इसलिए उनको डी सीट नहीं किया गया। क्योंकि उन्होंने जो 63A में जो बेसिक क्राइम है कि अपनी पार्टी के खिलाफ जो वोट देगा, तो वहाँ इन 20 थे, 25 थे, 23 थे, इन लोगों ने कोई वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया। सिर्फ इनके खिलाफ एक बुनियाद बनाई गई थी कि ये सिंध हाउस में नजर आए थे, लिहाजा वो डी सीट न हुए। लेकिन पंजाब की सूरत हाल वो इंटायरली डिफरेंट है कि उन्होंने वोट डाला था। अब ये जो पीटीआई क्लेम कर रही है कि हमारी विक्ट्री है, तो ये 25 बेसिकली थे तो पीटीआई के और पीटीआई के ही डी सीट हो गए। यानी जिस बात पे शादियाने बजाए जा रहे हैं कि अपने ही 25 बंदे डी सीट हो गए,
तो कम हो गए, अपनी अक्सरियत भी कम हो गई। कितने नंबर से? 25 नंबर से। 25 नंबर से कम हुई तो पहले जिस बुनियाद पर उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला बने हुए थे, अब तो वो जो बेस है 25 नंबर कम हो गए, उसमें तो बेस भी गिर गई। लिहाजा ये इतना सिंपल नहीं है। जो मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि जब सियासी जमातें सामने आएंगी, उनको समझ आएगी कि ये क्या हुआ है, उसके बाद हम इस सिचुएशन में होंगे, बात कर सकें कि वो क्या कर रहे हैं। फिलहाल तो किसी को कुछ पता नहीं है। दूसरी बात और भी है कि एक लग रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई हुकूमत है वो अपने ट्रांसफर नहीं कर सकती, पोस्टिंग नहीं कर सकती। इधर से जो पंजाब के एडवोकेट जनरल हैं वो तो सूबाई हुकूमत की तर्जमानी करते हैं, वो नहीं हटाए जा सकते। तो अजीब सा क्राइसिस है। सही सलीम, आपसे जानना चाहेंगे जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है पंजाब से, अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा प्लीज। पंजाब असेंबली में सादा अक्सरियत के लिए हम देख रहे हैं 186 वोट दरकार हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के आज के फैसले के बाद 25 मुनहरिफ अराकीन अगर निकल जाएं तो कोई भी पार्टी जो दिख रहा है सादा अक्सरियत नहीं रखती, जबकि तहरीक इंसाफ के पास 183 वोट में से 158 वोट्स बाकी रह गए। जबकि दूसरी जानिब पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के 158, काफ लीग के 10 अरकान मिलाकर 168, जबकि नून लीग के 4 मुनहरिफ अराकीन मिला दिए जाएं तो 172 बनते हैं। और नून लीग के 165 अराकीन में से 4 मुनहरिफ अराकीन निकाल दें तो पीछे 161 रह जाते हैं। इस तरह असेंबली में नून लीग के 161, पीपीपी के 7, आजाद के 5 और राहे हक पार्टी के 1 रुकन मिलाएं तो 174 बनते हैं। तो सादा अक्सरियत किसके पास है? देखिए, जो आपने दिया है बिल्कुल दुरुस्त ये डाटा है सारा, और इसके हवाले से जो है अगर दोबारा से इलेक्शन होगा तो इलेक्शन के लिए फिर वही असूल जो है वो सामने आएगा कि पहली बार जो है 186 वोट लेना जो है वो जरूरी होगा, और अगर 186 वोट कोई भी उम्मीदवार नहीं लेगा तो उसी रोज जो है दोबारा वजीर आला पंजाब का इंतखाब होगा, और उसके लिए जिसके पास भी 1 वोट ज्यादा होगा वो वजीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लीग नून ने इस चीज पे वर्किंग शुरू कर दी है कि उनके जो 4 मुनहरिफ अराकीन हैं उनसे राब्ते शुरू कर दिए हैं कि वो पार्टी में वापस आ जाए, और वापस आकर जो है हमजा शहबाज को अगर दोबारा से इलेक्शन होता है तो उसको दोबारा से वोट डालें। और उसके साथ साथ एक और वर्किंग जो है मुस्लिम लीग नून कर रही है कि पिछले चंद दिनों से, उसमें ये भी वर्किंग शामिल है कि जो पीटीआई के मजीद जो अराकीन हैं उनसे राब्ता किया जाए और उनको इस बात पर आमादा किया जाए कि वो जो है अपना वोट कास्ट ना करें, क्योंकि एक वोट अगर उन्होंने इस बात पर आमादा कर लिया कि वो वोट कास्ट ना करें तो फिर दोबारा से जो है हमजा शहबाज की जो है अक्सरियत हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो है PMLQ और PTI वो भी इस बात पर वर्किंग कर रही है कि मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उनको भी किसी तरह तोड़ा जाए और इस बात पर उन्हें मनाया जाए कि अब आइंदा देखें हमारी हुकूमत आ रही है, हाई कोर्ट की तरफ से फैसला, इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारे हक में फैसला हो गया, तो उसके तहत जो है पीटीआई की कोशिश है कि वो भी जो है नंबर गेम पूरी कर रहे हैं। और एक और जो है पीटीआई के पास कार्ड है वो ये है कि जो मुनहरिफ अराकीन हुए हैं उनमें 2 जो है अक़लीती अराकीन भी शामिल हैं, उनकी जो है दोबारा से वोट मुस्लिम लीग पीटीआई को मिल जाएंगे, और इस तरह 3 खवातीन की नशिस्तें जो है वो भी खाली होंगी और वो भी पीटीआई का दावा है कि वो उनको मिल जाएंगी। और इस तरह जो है पीटीआई और जो मुस्लिम लीग नून है इनके वोटों की तादाद जो है वो बराबर हो रही है, दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि इस गेम को जो है कौन अच्छे तरीके से खेलता है, क्योंकि अब एक बात तो इसमें तय हो गई है कि अदम एतमाद होगा, और अदम एतमाद के बाद जो है हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे, और उसके साथ साथ जो है फिर दोबारा से इलेक्शन होगा और उस पर वोटिंग होगी। और एक बात और भी है कि ये जो आज फैसला किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इसको अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। अगर इसको चैलेंज कर दिया जाएगा आइन और कानून के मुताबिक तो ये गालिब इम्कान यही है कि इन अराकीन असेंबली को दोबारा से जो है वो हुक्म इम्तनाई मिल सकता है। और हुक्म इम्तनाई का मतलब ये है कि जो लोग जहाँ पर थे वहीं पर ही रहेंगे, और उसके बाद अगर केस चलेगा तो जितने भी दिन केस चलता है उस वक्त तक जो है वो स्टेटस को होगा, यानी वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ही रहेंगे। और दोनों तरफ की जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अपने अपने आईनी और कानूनी माहिरीन को बुला लिया है और उनसे राब्तों का सिलसिला शुरू कर दिया है, और उसमें अब इस बात पर
غور کیا جا رہا ہے کہ کیسے جو ہے وہ سیٹ کو بچایا جائے یا آئندہ جب الیکشن ہو تو اس میں کس طرح کامیابی حاصل کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا عاصمہ شرازی، جس طرح سے نمبر گیم کی بات کی جا رہی ہے اس میں بہت وقت بھی لگے گا اور جوڑ توڑ بھی خاصا کرنا پڑے گا. خان صاحب ایک نقطے پر ہیں کہ دوبارہ الیکشن کروایا جائے اور آج ملتان کے جلسے میں وہ اعلان بھی کرنے والے ہیں کہ اسلام آباد مارچ کی تاریخ کیا ہوگی. تو پی ٹی آئی اب اس نمبر گیم کی طرف جائے گی یا پھر وہ ان کا وہی ایک نکاتی ایجنڈا رہے گا کہ دوبارہ الیکشن کروا دیے جائیں؟ جی دیکھیے، جو تحریک انصاف کو آج ظاہر ایک بڑی کامیابی ملی ہے، یہ ان کی پلی تھی کہ یہ جو جن لوگوں نے ووٹ کیا ہے، کیونکہ وفاق کی جو اسمبلی ہے نیشنل اسمبلی، اس میں تو لوگوں نے ووٹ نہیں کیا تھا جو ان کے ناراض اراکین تھے، اور صرف ایلائز نے جو ہے وہ ووٹ کیا تھا. لیکن یہاں پہ تو واضح ایک طریقے سے ان کا ایک 25 کا گروپ بنا تھا جنہوں نے کہ ووٹ کیا، جس پہ علیم خان بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ جو تھا یہ کلی طور پر ایک آئین اور قانون کے مطابق یہ فیصلہ تھا کہ ان کو ڈیفیٹ ہونا ہی تھا. یہ کتنے دنوں کے لیے ہیں، کتنے عرصے کے لیے ہیں، اس کے اوپر تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا آلریڈی، جو تشریح کی ہے تو اس میں وہ لیجسلیشن جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کرے گی. لیکن اب خان صاحب کے لیے آج کے جلسے میں الیکشن کمیشن پہ تنقید کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی توپوں کا رخ جو ہے وہ پاکستان کے تمام اداروں کی طرف رہا ہے. پہلے وہ سپریم کورٹ کے خلاف رات کو 12 بجے عدالتیں کھولنے کی بات کرتے رہے. کل آپ نے دیکھا کہ وہ موٹو لیا سپریم کورٹ نے اور اپنی حکومت کو گریڈ 17 کے جو افسران ہیں ان کی جو تبدیلی ہے یا ان کی جو تقرری ہے اس سے بھی روک دیا گیا ہے وفاقی حکومت کو. آج جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے اور بالکل انہوں نے قانون کے مطابق یہ فیصلہ کیا. تو اب خان صاحب کے پاس آج تنقید کرنے کے لیے کون سے ادارے رہ گئے ہیں؟ اب تو میرا نہیں خیال کہ ان کو تنقید کرنا بنتی ہے، لیکن یہ ایسا ہمیشہ ہوا ہے کہ جب بھی فیصلے ان کے حق میں ہوتے ہیں تو وہ اداروں کی تعریف کرتے ہیں، اور جب ان کے مخالف فیصلے ہوتے ہیں بھلے انہوں نے آئین کو توڑا ہو یا اس کی آئین شکنی کی ہو یا جس طرح سے بھی انہوں نے آئین کو بحران کا شکار کر دیا پچھلے کچھ عرصے میں، اس سے پھر وہ تنقید کرتے ہیں کہ عدالتیں جو ہے وہ 12 بجے کیوں کھلی. تو ایک پریشر ہے جو کہ انہوں نے اداروں کے اوپر آلریڈی بلڈ اپ کر دیا ہے. لیکن اب وہ الیکشن چاہتے ہیں اور الیکشن فوری طور پر چاہتے ہیں. الیکشن کے لیے ان کو الیکشن کمیشن پہ اعتبار کرنا ہے. وہ چیف الیکشن کمشنر کو باقاعدہ ان پہ ذاتی حملے کرتے رہے ہیں، ان کو نون لیگ کا قرار دیتے رہے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے اپنے عدم اعتماد کا بار بار اظہار کیا ہے. حالانکہ جو نئے چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی تعیناتی عمران خان صاحب کی مرضی اور ان کے دیے گئے نام کے مطابق ہوئی تھی. جنرل سلطان راجہ صاحب کا جو نام ہے یہ عمران خان صاحب نے ان کی تحریک انصاف نے ان کو دیا تھا اور اس سے انہوں نے اعتماد کا صرف 1 سال پہلے جو ہے وہ اظہار کیا تھا. 1 سال تک وہ کرتے رہے، لیکن جیسے ہی جلسے کا الیکشن ہوا اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تو الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر ان کو چپنے لگے. اب سوال یہ ہے کہ اگر انتخابات میں وہ فوری بھی جاتے ہیں، الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں یہ بات کہہ چکا ہے کہ 7 سے 8 مہینے لگیں گے ان کو ہلکا بندیاں اور حد بندیاں کرتے ہوئے. مردم شماری کا بھی انتظار ہے اور اگر وہ پرانی اس سے بھی کرتے ہیں مردم شماری پہ تو بھی ان کو ٹائم لگے گا. اور یہ بات جنرلی انہوں نے 17 بار یہ لیٹر اس وقت کی حکومت جو کہ تحریک انصاف کی تھی عمران خان صاحب کی ان کو لکھے تھے کہ آپ ہمیں مدد کریں تاکہ ہم انتخابات کی تیاری کریں. لیکن عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ الیکشن نہ ہو. یہاں تک کہ انہوں نے آخری وقت تحلیل کی اور یہ کہا تحلیل کر دی کہ وہ الیکشن کی طرف بڑھا جائے، جبکہ اس سے پہلے جو کہ وہ نہیں کر سکتے تھے تحلیل عدم اعتماد آنے کی صورت میں آئینی طور پر، لیکن اس سے پہلے ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ استعفا دیتے اور الیکشن میں چلے جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت بالکل انتخابات نہیں چاہتے تھے جب تک کہ ان کے ہاتھ میں پرفارمنس کی بجائے کوئی اور ایجنڈا نہ آتا اور نیا ایجنڈا یا نیا پروپیگنڈا خط کی صورت ان کے پاس آیا. اب وہ خط والا ایجنڈا بھی غائب ہوتا چلا جا رہا ہے. اب ان کو دوبارہ پرفارمنس پہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ان کی حکومت نے پرفارمنس جو ہے وہ کیا دکھائی تھی. لیکن بہرحال وہ الیکشن چاہتے ہیں، فوری الیکشن چاہتے ہیں اور اس کے لیے پورا ایک ان کے ذہن میں پلان آف ایکشن ہے جس کو کہ وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. دیکھنا یہ کہ آج کل میں اگر وہ پارٹی سطح پر آج شاید خطاب بھی کرنا ہے شہباز شریف صاحب نے قوم سے، آج نہیں تو کل
لیکن उनको भी एक वाज़ेह एजेंडे के साथ सामने आना पड़ेगा। मुल्क ये की कैफियत में ज्यादा देर नहीं रह सकता। आसमा, यही आप जिस तरीके से बात कर रही थी इलेक्शन कमीशन पर एतमाद के हवाले से, तो अब से कुछ देर पहले जब असद उमर बात कर रहे थे तो उनसे किसी ने सवाल किया कि आपका तो इलेक्शन कमीशन पर एतमाद ही नहीं है, तो उस पर असद उमर का कहना था कि नहीं, जो फैसला आया है वो दुरुस्त है और यही फैसला आना चाहिए था, वैसे हमें इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एतमाद नहीं है। ये बात उन्होंने आज फिर रिपीट की है बातचीत करते हुए। अच्छा आसमा, एक और चीज, जब मुसलसल कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर को चेंज किया जाए और उसके ऊपर एतमाद नहीं है, तो उसके लिए फिर पीटीआई का कौमी असेंबली में बैठना भी जरूरी है। आप तो कौमी असेंबली में मौजूद ही नहीं है, तो फिर इलेक्शन कमिश्नर के लिए आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं या फिर ये नुक्ता कैसे उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया सादिया कि ये मामला अभी तक जो है ये अभी बहरान दर बहरान होंगे। उसकी वजह ये है कि सिर्फ ये ही नहीं बल्कि चेयरमैन नैब की तैनाती भी होना जरूरी है, उनकी भी मुद्दत खत्म हो गई है और उसके लिए भी जो है वो अपोजिशन से बात करनी पड़ेगी। इंतखाबी इस्लाहात के लिए भी अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। जाहिर है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हिस्सा ही नहीं है इस वक्त पार्लियामेंट का, वो अगर बात नहीं होती तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर वो बरतरफ करने की बात करते हैं, बल्कि वो अभी कर नहीं सकते हैं, लेकिन बहरहाल अगर वो करते हैं और सदर मुमलिकत ने एक रेफरेंस का कहा हुआ है कि वो रेफरेंस दायर करेंगे उनके खिलाफ, तो ऐसी सूरत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनको हटा सकती है। उनको हटाने का तरीकाकार जो है वो एक पूरा वैसा ही है जैसे किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तरीकाकार है। ये आईनी पोजीशन है और ये कोई मतलब हुकूमती पोजीशन नहीं है, तो उसके लिए उनको इंतजार करना पड़ेगा इस प्रोसेस का भी। ये इतना कोई जल्दी निपटने वाला प्रोसेस नहीं है। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत सारे फैसले, बहुत सारी चीजें आंख के इशारे से हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल आपको कहीं ना कहीं आइन और कानून को जो है वो देखना पड़ता है, तो इसके अंदर भी वक्त लगेगा। और इसी तरह से अगर नया इलेक्शन कमिश्नर भी आ जाता है तो भी उसको हदबंदियों और जो हल्का बंदी है उसके लिए वक्त लगेगा। उसके ऊपर भी पॉलिटिकल पार्टियों के एतराजात होते हैं, वो भी एक लंबा प्रोसीजर होता है, तो वो भी उसमें भी 6 से 7 महीने तो कहीं नहीं लगे रहे। और इस 6 से 7 महीनों के अंदर आपको अपनी एक अपनी जो इकॉनमी है उसको भी ठीक करना है, और इसके साथ साथ इस इकॉनमी के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपने मुल्क को जो है वो किस डायरेक्शन में लेके जाना है। अभी जैसे कल से कुछ हमारे तजज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की लगानी पड़ेगी, जिसमें कि आपको मालूम है कि क्या तरीकाकार होता है, और लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी तो जरूर लग जाए, लेकिन जो निगरान सेटअप की वो बात कर रहे हैं कि 6 महीने से 1 साल का वो टाइम पीरियड हो जिसके अंदर से वो निगरान सेटअप बनाया जाए, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी शिक है जिसके तहत वो ये आइडियाज पेश करें। तो मेरा ख्याल है कि जो भी इस वक्त होना है मुल्क में वो आइन के अंदर रहते हुए होना पड़ेगा। आइन ही पाकिस्तान को बचा सकता है, आइन ही पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है। ये जो मुख्तदर हल्के हैं वो पाकिस्तान की सियासी जमातें और इमरान खान साहब, जाहिर है इमरान खान साहब को आइन से कोई खास लगाव नहीं है और नजर भी नहीं आता जो उन्होंने गुज़िश्ता कुछ अरसे में अदम एतमाद की दिनों के अंदर किया, लेकिन जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं और जो पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के हैं उनको जरूर आइन को मद्देनजर रखना पड़ेगा। इसके बगैर चारा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में है कि अगर आप निगरान सेटअप बना दें, अगर आप कोई ये हुकूमत भी घर चली जाए, अगर अगली हुकूमत में बनाने में भी काफी वक्त लगेगा, खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट हो सकता है। और इमरान खान साहब जो है वो जिम्मेदार हैं इस सिचुएशन में पाकिस्तान को पहुंचाने के। ये मेरा ख्याल है कि इदारों को और पाकिस्तान की सियासी जमातों को इसके ऊपर बहुत सोच समझ के फैसले करने हैं कि पाकिस्तान को देखना है, लॉन्ग टर्म चीजों को देखना है, या शॉर्ट टर्म अपने सियासी जो की सीटें ज्यादा आ जाए, कम आ जाए, या उनके सियासी मफादात हैं उनको बालातर रखना है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम हो जाएंगे अगले चंद दिन। और अगर आज शहबाज साहब कोई फैसला लेते हैं जो उनको लेने चाहिए जल्द से जल्द सख्त फैसले, तो मेरा ख्याल है कि उनको ये उनको बताना पड़ेगा कौम को शहबाज शरीफ। सही। अच्छा, ये मुआशी इमरजेंसी और तमाम तर सूरत हाल तो बिल्कुल डिस्कस हो रही है और सीनियर सहाफ़ी इन चीज़ों को यकीनी तौर पर बता भी रहे हैं, और आप जिस तरह से कह रही हैं कि एक निगरान सेटअप आना चाहिए, लेकिन पीटीआई का जो इस वक्त तर्ज सियासत है वो किसी और सिमत जा रहा है और लोग जो सोच रहे हैं वो कुछ और सोच रहे हैं। आप समझती हैं कि इस फैसले के बाद इमरान खान जो कह रहे हैं कि फौरी तौर पर इंतखाबात करवा दिए जाएं, उसके जोर में तेजी आ जाएगी? देखिए, इमरान खान साहब एक सियासी हकीकत है और वो एक पॉपुलर पार्टी और एक पॉपुलर नैरेटिव को लेके इस वक्त चल रहे हैं।
یہ پاپولر نیریٹو جو ہے وہ جلسوں اور سوشل میڈیا کی حد تک تو بہت اہم ہے، اس میں کوئی دو جی آسمان جی غالباً ہمارا رابطہ آسما شیرازی سے اس وقت بحال نہیں ہے، اور وہ بتا رہی تھی کہ جس طرح سے سچویشن ہے اس میں پی ٹی آئی ایک سیاسی حقیقت ہے اور ان کا نیریٹو جو ہے وہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اسٹرانگ بھی ہے۔ سلیم شیخ، اسی بات کو آپ کی جانب لے کر آئیں گے کہ پنجاب سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ ہے، وہاں پر سیاسی بے یقینی مزید بڑھ گئی ہے، تو کیا اس کے اثرات وفاق پر بھی پڑیں گے اور پی ٹی آئی جو نیریٹو لے کر چل رہی ہے کیا اس کو تقویت ملے گی؟ جی بالکل، یقیناً اس کے جو اثرات ہیں وہ وفاق پر لازمی پڑیں گے، کیونکہ جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ پنجاب کے ذریعے ہی چلتی ہے، کیونکہ پنجاب میں اگر اکثریت جس کی ہوتی ہے اسی طرح وہ چلتی ہے۔ ماضی میں جو حکومت پی ٹی آئی کی تھی وہاں پر تو وفاق میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اب جو ہے وفاق میں اگر کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں مسلم لیگ نون بڑی جماعت ہے، تو پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون بڑی جماعت کے طور پر ہے، اور اگر یہ صورتحال ہو گئی اور آج یا کل اگر یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج نہیں کرتے اور وہاں سے اسٹے نہیں ملتا تو سیاسی صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو جائے گی۔ لیکن اس میں پھر وہی آئینی اور قانونی بات سامنے رہے گی کہ حمزہ شہباز کو عدم اعتماد کے ووٹ کے لیے کون کہے گا، اس لیے جو ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے ان کو اپنے عہدے کا چارج لینا پڑے گا بطور گورنر پنجاب، ایکٹنگ گورنر کے طور پر، پھر ہی وہ کسی کو کہہ سکیں گے کہ آپ ووٹ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اگر یہ وہ ووٹ نہیں لیتے تو پھر ان کے لیے مشکل ہے، اور پھر اگر دوبارہ سے جب الیکشن ہوگا وزیر پنجاب کا تو پھر جو چودھری پرویز رائی ہیں ان کو یہ عہدہ چھوڑنا پڑے گا۔ جب وہ یہ عہدہ چھوڑیں گے تو ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ پھر بن جاتے ہیں، لیکن اسپیکر کی موجودگی میں تو جو یہ ہے عہدہ ڈپٹی اسپیکر کو کنورٹ نہیں ہوتا۔ یہ آئینی سارے سوالات ہیں اور یہ آئینی اور قانونی ماہرین جو ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے بتا سکیں گے، اور اب بھی جو ہے دونوں پارٹیوں کی آئینی اور قانونی مشاورت شروع ہو چکی ہے کہ اس کیس کو ہم نے کیسے آگے لے کر جانا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ایک رہنما سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس پر ورکنگ مکمل کر لی ہے آج کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد، اور ہم جو ہے اس پر سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ سے جا کر جو ہے وہ ریلیف لینے کی کوشش کریں گے۔ تاہم ابھی جو ہے اس پر مسلم لیگ نون نے جو ہے اپنا آفیشلی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ اس کے لیے جو ہے جو کولیشن گورنمنٹ کی بھی مشاورت چاہیے ہوگی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ہے شہباز شریف اور نواز شریف دونوں کی جو معاونت وہ چاہیے ہوگی، اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا۔ ٹھیک سلیم، آسما شیرازی آپ سے جس طریقے سے بات ہو رہی تھی، ہم اوور آل جو سچویشن دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے تحریک انصاف اپنے جلسے جلوس لے کر چل رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا کسی حد تک یہ پریشر بلٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جس طریقے سے گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ شاہد خاقان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا، انہوں نے مینشن کیا کہ کسی بھی قسم کے پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز جیسے چل رہی ہے، جیسے سخت فیصلے لینے ہیں تمام لوگوں کو مل کر لینے چاہیے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، واقعی تحریک انصاف وہ پریشر بلڈ کر پا رہی ہے جو کہ واقعی کہیں نہ کہیں اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پریشر تو بالکل بلڈ اپ کیا ہے، جلسوں سے زیادہ جو ان کا سوشل میڈیا کے اوپر جو گالم گلوچ ہوئی ہے، جس طرح سے اداروں کے سربراہوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو اس سے ایک پریشر تو آیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اس پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، حکومتی جماعتیں ہیں، ان کی طرف سے سستی اور ان کی جو نیریٹو بلڈنگ کی ناکامی ہے اس کی وجہ سے زیادہ پریشر آیا ہے۔ جو بھی ایک فیصلے ہوئے تھے اس سے بھی اگر عمران خان صاحب کے اعتماد کی تحریک کا معاملہ تھا، اس سے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق تھا، نظریہ ضرورت کو دفن کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے جو بار بار عمران خان صاحب آرمی چیف کو نیوٹرل کہتے رہے، ان کو جس طرح سے القابات سے نوازتے رہے اور اسی طرح سے انہوں نے جس طرح سے اداروں کو ملائن کیا، اس کے باوجود ادارے جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی جس کے اوپر حکومتی اتحاد کو ان اداروں کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس وقت جو ہے اپنی نیریٹو بلڈنگ میں ان کی ناکامی ہوئی، یہ نہیں کھڑے ہوئے اور وہ پریشر جو ہے وہ آیا ہے۔ اب دیکھیے 2-4 دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا رات کو مولانا فضل الرحمان کا بھی جلسہ بہت بڑا جلسہ تھا، اور مریم نواز نے بھی جو سرگودا میں کیا، پھر اس سے پہلے گجرات میں، تو کافی بڑے جلسے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جلسوں سے جو ہے وہ پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے، جو اصل طاقت ہے وہ ہوگی الیکشن کے اندر جس دن لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، اور جو کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس ہے اس کی جو ریالٹی ہے، اس کی جو ڈائنامکس ہے
वो बिल्कुल, और उसके जो ऑप्टिक्स हैं वो कतई तौर पर मुख्तलिफ होते हैं। उसका जलसों से जो है वो ज्यादा ताल्लुक अपने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों, उसके जो मुकामी जो टिकट जिनको मिलते हैं, जो नुमाइंदे होते हैं, और फिर जो उनके अंदर जात बरादरी और बाकी दीगर चीजें वो बहुत अहमियत रखती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब इस वक्त बहुत पॉपुलर महसूस हो रहे हैं, और वो कहा जा सकता है कि वो एक पॉपुलर नैरेटिव लेके भी चल रहे हैं। लेकिन इसको अपने वोट में कैसे बदलना है, ये एक अहम चैलेंज खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए भी होगा, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त अकेले जो है वो अपनी पार्टी को रन कर रहे हैं। उनकी पार्टी इस वक्त इमरान खान साहब जो है उनकी ही वजह से है, और वही एक वाहिद जिसे कहना चाहिए कि एक लीडर है अपनी पार्टी के अंदर, जो कि अपनी पार्टी के नैरेटिव को और अपनी पार्टी को आगे लेके चल रहे हैं। उनको आगे कैंडिडेट भी खड़े करने हैं, और उनको इस नैरेटिव को सस्टेन भी करना है। ये नैरेटिव कितना सस्टेन हो पाएगा, क्या अगर मौजूदा हुकूमत पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाती और वो घर चली जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी जाहिर है कि इमरान खान साहब को लेनी पड़ेगी। इसकी जिम्मेदारी एक महीने की हुकूमत को नहीं लेनी पड़ेगी, इसकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब को, और कहीं ना कहीं उन हलकों को भी जो कि सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब की, उनको भी लेनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत गंभीर मामला है। अगर इमरान खान साहब इस वक्त इलेक्शन मांग रहे हैं, तो इलेक्शन वो तस्लीम नहीं करेंगे जब तक कि उनको वाज़ेह अक्सरियत या उनको दो तिहाई अक्सरियत नहीं मिलेगी। तो फिर क्या होगा, फिर भी इमरान खान साहब सड़कों पर ही होंगे अगर ऐसा होता है। और अगर ऐसा नहीं होता और वो इलेक्शन जीत जाते हैं, और वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से भी जीतते हैं, तो भी अपोजिशन जमातें उनको तस्लीम नहीं करेंगी। तो हर दो सूरतों के अंदर पाकिस्तान के जो सियासी बहरान है वो वसीकर हो सकता है। तो अब देखना यही है कि अब जो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद है ये और प्राइम मिनिस्टर है, ये थोड़ी सी हिम्मत इनको करनी चाहिए सख्त फैसले लेने में, जो कि वो नहीं ले पा रहे, और उनको वो सख्त फैसले अवामी दबाव की वजह से और कुछ गारंटीज की वजह से नहीं ले पा रहे हैं कि गारंटीज उनको प्रोवाइड की जाए। जाहिर है कि गारंटी जो इस मुल्क में इदारे देते हैं वही गारंटीज देते हैं, वो उनको देते हैं या नहीं देते, ये एक बहुत अहम सवाल है कि ये उनको मुस्तकबिल में ही हमें पता चलेगा अगले 2-4 दिनों में कि उनको गारंटियां दी जाती हैं इस बात की कि नहीं, या दूसरी सूरत में वो ये समझते हैं कि अगर वो सख्त फैसले ले लेते हैं, इमरान खान साहब इस्लामाबाद आ जाते हैं, एक मैस क्रिएट हो जाता है, अवामी दबाव पड़ता है और इदारे भी साथ खड़े नहीं होते, तो फिर जाहिरी तौर पर उनको पॉलिटिकली भी और हर तरीके से वो लूजिंग एंड पे होंगे। और ये जस्टिफाइड हैं ये सब चीजें, जाहिर है कि उनको ये देखते करना है कि किस तरह से चीजों को आगे चलाना है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर भी इस वक्त है कि वो सबको साथ लेके चलें, एक ऐसी जगह पे लेके आए जहाँ पे कोई इत्तेफाक राय हो, किसी तरह का स्टेबिलिटी हो। पाकिस्तान की जो इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो कम तरीन होते चले जा रहे हैं, पाकिस्तान को कहीं और से पैसे नहीं मिल रहे, क्योंकि IMF के साथ आपने डील कर रखी है कि आप पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी नहीं देंगे, आप पेट्रोल पे सब्सिडी खत्म करेंगे तो पाकिस्तान के अवाम जो है वो सड़कों पे होंगे, वो आपके पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे। ये रियलाइजेशन जो है ये कौन करेगा, किस सतह पे होगी, कहाँ होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जितना जल्दी होगा उतना पाकिस्तान बहरान से निकलेगा, वरना शायद बहरान बढ़ता चला जाएगा। अच्छा आसमा, एक चीज यहाँ पर और नजर आ रही है, PTI का जो नैरेटिव है, इमरान खान की जो बातें हैं उसमें वाज़ेह है कि इमरान खान या तो हुकूमत करना चाहते हैं, हुकूमत में बैठना चाहते हैं, या तो फिर वो अवाम को सड़कों पर देखना चाहते हैं। उनके पास कोई और हल नहीं है पाकिस्तान के लिए कि वो या सड़कों से वो हट जाएं और वो आराम से अपनी इलेक्शन कैंपेन करें, जो साल 1.5 साल जब भी इलेक्शन होंगे 2023 अगस्त में, तो उसके लिए वो प्लानिंग करें। ऐसा नहीं होगा और ऐसा मुमकिन ही नहीं लगता तहरीक इंसाफ की सियासत को देखते हुए। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो जाहिर है कि जो आपने खुद सवाल भी पूछा कि खान साहब इलेक्शन से बाहर, हुकूमत से बाहर जो है वो सड़कों पे होंगे और हुकूमत में होंगे तो ऐवान इक़्तिदार में होंगे, तो उन्होंने 3.5-4 साल जो है वो इक़्तिदार देखा है। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के इस वक्त सारे मसाइल हैं इसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी भी है, उनकी हुकूमत की, उनकी गवर्नेंस की भी है। ठीक, आसमा हमारे साथ मौजूद थी, आसमा शिराजी। शौकत पराचा ने भी हमें ज्वाइन किया, रेहान शेख ने भी हमें अपडेट किया, सलीम शेख भी हमें ज्वाइन किए हुए थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।